المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى صحیح سے بیٹھو. جو لوگ دروازے پہ بیٹھا ان سے کہہ رہا ہوں حضور علیہ السلام کی محفل ہے. ذرہ برابر بے ادبی اگر کرو گے نا تو مقدر بگڑ جائے گا. یاد رکھنا. ہماتن گوش ہو کر بیٹھنا. حالات دیکھ کر میں موضوع بدل دیتا ہوں. محفل کے بھی حالات دیکھ کر میں اپنا مزاج اپنا موضوع بدلتا ہوں. اور حضور علیہ السلام کی محفل میں ذرہ برابر اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے اٹھا کے باہر کر دیتا ہوں. ان کا دھیان رکھیے گا. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفى صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک سید الخلق کلہم صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. عطار ہوں رومی ہوں راضی ہوں غزالی ہوں. عطار ہوں رومی ہوں راضی ہوں غزالی ہوں کچھ ہاتھ نہیں آتا بیعار سحرگاہی. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. ایک سجدہ شبیری ایک ضرب ید اللہ. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. ایک سجدہ شبیری ایک ضرب ید اللہ. آئین جواں مرداں حق گوئی و بیوہ کی. آئین جواں مرداں حق گوئی و بیوہ کی. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی. اور ایک مقام پر ڈاکٹر اقبال نے میدان کربلا کا نقشہ کھینچا ہے. کہتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اور حسین ابن علی نے بہا دیا آخر. حسین ابن علی نے بہا دیا آخر
रगों में दौड़ रहा था जो खून इस्माइल। हुसैन इब्ने अली ने बहा दिया आखिर, रगों में दौड़ रहा था जो खून इस्माइल। दरूद शरीफ पढ़ें। मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर मैं आपको समझाने की गरज से बैठा हूँ, तकरीर नहीं करूँगा, थोड़ी देर मैं आपको समझाऊँगा। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं शेर रज़ा की जुमला खुद्दाम। मैं सदर सेक्रेटरी बहुत कम कहता हूँ, खुद्दाम, और सबसे अच्छा और बेहतर जुमला यही है। बेशक सबसे अच्छा हक है। जिसके दिल दिमाग में सदारत और ओहदे के जुमले आ गए, या जिसके दिमाग में ये आ गया कि मैं सदर हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं खजांची हूँ, मैं अरकान से हूँ, मैं मेंबर हूँ, मेरा ये ओहदा है, मेरा ये मकाम है, मेरा ये मर्तबा है, तो मेरे भाई ये मकाम मर्तबा यहीं रह जाएगा, अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ये सदारत का रोग यही रहेगा, फिर अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। चाहे वो एक हो या 1000 हो, सब के सब अपने आप को ये समझें कि हम अल्लाह के दीन के खादिम हैं। सब के सब ये मिजाज बना लें कि हम अल्लाह के दीन के खादिम हैं। और जब बंदा अपने दिमाग में ये घमंड ले आता है, तकब्बुर ले आता है कि मैं मस्जिद का खादिम समझे, मदरसे का खादिम कहते, मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि मेरे भाई, अगर अल्लाह के घर की कुछ खिदमत का मौका मिला है ना, अल्लाह के घर की खिदमत का मौका मिला है, मदरसे की खिदमत का मौका मिला है, किसी मजहबी तहरीक और तंजीम की खिदमत का मौका मिला है, तो सजदे शुक्र बजा लाया करो, सजदे शुक्र अदा किया करो, सजदे शुक्र अदा किया करो। लोग ताल्लुक जाहिर करके बोलते मैं बड़ा कमेटी का सदर हूँ, मैं दीनी तहरीक और तंजीम की बात कर रहा हूँ, इससे हटकर मैं बात नहीं करूँगा। लोग कहते हैं बला का सदर हूँ, बला का सेक्रेटरी हूँ, मेरे भाई नहीं, कहो मैं खादिम हूँ, कहो मैं खादिम हूँ, ये मिजाज रखो। और अगर उस मस्जिद का, मदरसे का खिदमत का मौका मिल रहा है, किसी तंजीम तहरीक का मौका मिल रहा है, खिदमत का कोई अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि मेरे मौला बंदे तो बहुत हैं, बंदे बहुत हैं। फरमाते हैं हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रास्ते से गुजर रहे हो ना, अगर एक कांटा हटाने का मौका मिला, रास्ते से गुजर रहे हो, अगर एक कांटा हटाने का मौका मिला, तो अल्लाह करती है भाई अपने इंसान की, बहुत दिमाग चलता है। उसने कहा मैं ऐसा मौका ही नहीं दूंगा कि छू डंक मारे। उसने एक कांच का महल बनवाया, शीशे का महल बनवाया, या उसने कहा कि ऐसा बना दो जरा बराबर कुछ उसमें पास न कर सके, और मैं उसी में रहूँगा, फला वक्त फला टाइम मैं उसी में दाखिल हो जाऊँगा, देखता हूँ मौत कैसे आती है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चाहे पर कादिर है। वो कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसका फरमान है। उसने कहा ठीक है, मैं अपने वक्त पर जो है मैं इंतजाम कर दूंगा, शीशे का महल बनवा लिया, जो वक्त उसको नजूमी ने बताया था, उस टाइम वो उस महल के अंदर, कांच के महल के अंदर दाखिल हो गया, और उसका एक बहुत ही अजीज और चहीता घोड़ा था, उस घोड़े को साथ लेकर गया अपने कमरे में, उस कांच के महल में उस घोड़े को लेकर गया, और उसने कहा इसके बगैर तो मैं रह नहीं पाऊंगा, इसके बगैर नहीं रह पाऊंगा, इसको लेकर जाऊंगा। घोड़े को लेकर उस महल में, कांच के महल में, शीशे के महल में वो ठहर गया। जब वक्त जब हुआ तो उस वक्त उसके घोड़े को एक छींक आई, जब वक्त हुआ तो उसके घोड़े को एक छींक आई और उसकी नाक से बिच्छू निकला। जब वक्त हुआ तो उस घोड़े को एक छींक आई और उसकी नाक से बिच्छू निकला, बादशाह को डस लिया। नाक से बिच्छू निकला, बादशाह को डस लिया, बिच्छू ने काट लिया, बादशाह मर गया। बिच्छू ने डसा, बादशाह मर गया। मौत आप घर पर हो गया आएगी, हॉस्पिटल इंतजाम बहरहाल लाजमी है,
इंतजाम और एहतियात लाजमी है, इसका मुनकिर कोई नहीं। तकदीर के साथ तदबीर भी लाजमी है, पर मौत को तो हटा नहीं सकते भाई ना। पर हुजूर इस्लाम ने कितने करीब से मौत के बारे में बताया कि तुम्हारे पीठ के पीछे खड़ी है मौत, पर हम करते नहीं। पर साइंस वालों ने, दुनिया वालों ने कह दिया कि मर जाओगे तो मादअल्लाह वैसा है कि लोगों की दिल की धड़कन, कितने लोग तो जबरदस्ती टेंशन से मर गए, कितने लोग दहशत से मर गए भाई। अच्छा ये क्यों? तवक्कलतु अलल्लाह, हम पढ़ते तो हैं पर ये हमारे हलक के नीचे नहीं उतरता। तवक्कलतु अलल्लाह, ये ज़बान से तो पढ़ते हैं पर दिल तो बड़ी बात है, हलक से नीचे नहीं उतरता। अल्लाह पर भरोसा है ही नहीं, अल्लाह पर हमारा भरोसा है ही नहीं है। वो जो कहता है मान अल्लाह, यही की बात है, चंद साल पहले की बात है। साइंस वालों ने कुछ ऐलान कर दिया कि फला रात में तूफान आएगा, मकानात गिर जाएंगे और ऐसा झलझला आएगा कि लोग मर जाएंगे, मकानात गिर जाएंगे। मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं महाडा कॉलोनी में, मुझे तो 20 साल होने वाले हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है वो रात जो साइंस वालों ने कह दिया था कि तूफान आएगा, झलझला आएगा, मकानात गिरेंगे, लोग मर जाएंगे। मैंने कसरत से मोहल्ले के लोगों को देखा, घरों को छोड़कर रोडों पर बैठे हैं, घरों को छोड़कर रोडों पर बैठे हैं, दरख्त के नीचे नहीं, आसमान के शामियां न तले बैठे हैं। काश ये कौम, ये उम्मत जो उस वक्त भी रोड पर बैठी थी, काश अल्लाह के घर में बैठती, काश अल्लाह को सजदा करने बैठती, काश हुजूर की याद में बैठती, काश अल्लाह के खौफ से ये लोग निकलते, हुजूर की मोहब्बत सच्चे दिल से अपने दिल में बिठा लेते, तो ये नौबत ही नहीं आती। यानी एक जुमला किसी ने सुना दिया, मादअल्लाह घर छोड़ दिए, घर छोड़ दिए। इतना कमजोर अकीदा हो गया है। और हुजूर फरमाते तुम्हारे पीठ के पीछे खड़ी है, कभी भी आ सकती है मौत, तुम्हें खबर नहीं। 100 साल भी लग सकते हैं, एक सेकंड भी नहीं लग सकता। दोनों बातें हैं। तो मेरा ख्याल है जहां हम 100 साल का प्लान बनाते हैं, किसी कोने में एक सेकंड को भी रखा करें। जहां हम 100 साल का प्लान बनाते हैं, आप हम सब उसमें शामिल हैं। 100 साल का, 50 साल का प्लान हमारा है, तो थोड़ा सा एक दूसरा पहलू जो है कि पीछे खड़ी है मौत, उसको भी ध्यान में रखें कि अल्लाह का हुक्म आ जाएगा तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि मरने के लिए तैयार रहो, मैं ये नहीं कहता कि मरने के लिए तैयार रहो, इतना जरूर है और जरूरी है कि मरने के बाद की तैयारी करके रखो। जरूरी है मरने के लिए तैयार रहो, मैं ये नहीं कहता कि हरदम अलर्ट रहो, मरने वाला हूं, नहीं। मरने के बाद की तैयारी करके रखो, मरने के बाद की तैयारी करके रखो। मैं कल तुम्हें अर्ज ये कर रहा था कि दुनिया की सबसे अजीम महफिल ये है, यहाँ से बात मैं काटा था, दुनिया की सबसे अजीम महफिल है, तो सबसे ज्यादा अदब भी होना चाहिए, सबसे ज्यादा अदब होना चाहिए। हुजूर इस्लाम में बहन देता हूँ पूरे मुल्क में कि मिलाद की महफिल बंद मत करो, मिलाद की महफिल बंद मत करो। तो गांव में, देहात में खत्म होते जा रहा है। जब से हम जलसे की तरफ समझो दिए ना कि लाख 50,000 खर्च करना, इंतजाम करना है, बड़े आलिम को बनाना है और बहुत ज्यादा इंतजाम इंतजाम करना है। जो घरों में मिलाद शरीफ की महफिल हुआ करती थी ना, गांव के मौलवी साहब आते थे, 1 किलो शीरनी आती थी, बताशा आता था या शक्कर आता था या गुड़ आता था, चंद लोग बैठ करके हुजूर इस्लाम का जिक्र करते थे। वो महफिल मिलाद हुआ करती थी। हम खुद आज से 10 साल 15 साल पहले अपने गांव की तरफ अगर जाते थे, 1 महीना रहे, तो मैं अल्लाह की कसम कहता हूँ 1 महीने में 30 दिन होते हैं ना, 35 मिलाद की महफिलें हुआ करती थी। एक तारीख में कई घर जाया करते थे। मगरिब बाद आपके यहाँ, इशा बाद आपके यहाँ, 1 घंटा वहाँ, 1 घंटा यहाँ, ऐसे हुआ करता था। अब तो सब खत्म होते जा रहा है भाई, अब तो सब खत्म होते जा रहा है। ये महफिल जो है ईमान को जिला बख्शती हैं, रूह को ताज़ा करती हैं। और बेशतर ऐसे भी हैं जिनको मसाजिद जाने की तौफीक नहीं होती, तो अल्लाह की तौफीक से इन महफिलों में आ जाया करते हैं, इन महफिलों में आ जाया करते हैं। और ये महफिलें ऐसी हैं, यही महफिलों से ही इंसान को मस्जिद जाने का जज्बा मिलता है, इन्हीं महफिल से मसाजिद जाने का जज्बा मिलता है। लॉकडाउन में सबसे बड़ा नुकसान बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ ना उम्मत का, वो ये हुआ कि हमारी उम्मत जो है उलमा से रास्ता टूट गया, उम्मत का उलमा से रास्ता टूट गया। हुआ कि नहीं हुआ?
कैसे हुआ? उलमा का उम्मत से राब्ता टूट गया। उलमा का उम्मत से राब्ता कैसे होता है? मस्जिद के मिंबर से, स्टेज से होता है, ऐसी नशिस्तों से होता है। दोनों को अलग अलग कर दिया गया, ना आप हमसे मिल सकते हो ना हम आपसे मिल सकते हैं।